Okay, so as I explained previously, this short introduction is about CST Studio so that you can do simple electrostatic examples. For example, discrete charges at a region or discrete charges at different locations and find electric field due to these, or electric field due to continuous charge distribution like line charge, surface charge, or volume charge. Similarly, you can find the potential or the electrostatic energy density or electric flux density. Okay, so you can do all this using this CST Studio Suite. Okay, so just ignore this. Okay, I hope I am sharing with you the screen. So here you will go to new template. As I said, there are different software packages in the CST, and these software packages can be used for different categories of problems. One category is about static and low frequency. That is what you would be using. The other is for high frequency circuits, RF, microwave. One is for PCBs, etc. The other one is for EMI, EMC. By now, you must have heard we also have a lab of EMI, EMC in the Department of Avionics Engineering at Institute of Space Technology. And then you can also do some particle dynamics simulation here. So ours is statics. So you just click here and select any of the categories of problems here. Okay. Uh, Select one that has the highest probability of using electrostatics. Okay. So I select this, for example, high voltage. Next. And there are insulators, bus bar, plasmas, subcategories. So I select insulators. Next. And you see there are different solvers. Okay. So we'll straight away go to E-static. E-statics means electrostatic. No, these are the units you can change if you like. Okay, all kind of units are here. You can change these later on as well, but since our problem is very, very simple, so I think we just go and finish here. Okay, so this window opens. All you have to do is just go to modeling. Okay, go to sphere, double click here, and then move the mouse slightly. Just don't worry where the sphere is being drawn, what are the dimensions. As you double click, okay, you will get this window. Okay, where you can put in the exact kind of coordinates. Okay, so for sphere orientation doesn't matter. So whether it is X, Y, Z, is simple. You have to have a center radius of 1 millimeter. Okay, and the material should be PEC. Okay, perfect electric conductor. Okay, okay. So we have this sphere. Okay, now you can see here, this is the sphere. If you want to view it or change its perspective, view, etc. So here are some icons that you can use. So this one is, for example, this one. First of all, this one is to bring the whole view, reset the view so that it is within the window. This one is here to rotate. Okay, you can rotate it in any direction. This one here is to move left, right. Okay, this one is if you want to, kind of zoom in a uh, specific volume of the view. Okay, so for example, I click here and I can, you see, zoom this one. Okay, or I can zoom this further. And you can just rotate this. Okay, this is the sphere.
And if you want to bring it to the whole, so you can again reset the view. Okay. And here also you have, these different perspectives, or top view, side view, left view, okay, um, and a simple perspective as well. Okay, so this is the front view, likewise back view. This is the top view. Okay, since this is a sphere, so it won't change. So I go to this, and then this procedure is common for everything. First is define the geometry, make complete geometry. Next point is define the sources. Okay, so in this case, we have a source is a charge. So if you look here, you will find here. Uh, um, so you after modeling, you go next to simulation. Once you go to the simulation, then you can find here, so these are potentials and these are, for example, charges. And you see here, this is electric charge on PEC, this is electric charge distribution on dielectrics, okay? Sorry. So I click here and it says select a face to pick solid for the charge distribution. So this is the face. You just double click and you will find this window. And my charge is 100 exponential minus 12 picofaraday. So I do this. I have defined the source, and now since there are no frequency ranges, etc., this is electrostatic simulation. So my model is complete. I am ready for simulation. I have defined the source as well. So I straight away go to setup solver, and accuracy, everything is good enough. Start. Okay. So this won't take much time. I think 2-3 minutes. But during that time, I think it would be advisable to do some other uh, recording so that you can save this time. So after this simulation is finished, okay, then you can have a 3D distribution of electric field, 3D distribution of electric flux density, 3D distribution of potential, and 3D distribution of electrostatic energy density. And we have studied all these topics. And this is, of course, very simple in case of a sphere at the origin. Okay, we know that the electric field is proportional to 1 over R. The potential is, sorry, the electric field is proportional to 1 over R square. The potential is proportional to 1 over R. And similarly, the electric energy density that depends on the electric field. Okay, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी भी स्ट्रॉन्ग है. So it is basically d electric flux density, a dot product with E. Okay, electrostatic energy density is proportional to this. Um, so after and all these 3D simulations, you can see in color graphs. You see here on the right side, we have this scale on color graph.
red represents 100 picofarad, and then so on. It reduces 8 it's 80 picofarad, 60, 42, and then it's 0. Okay. So you see here electrostatic solver, this is pass 2. So it is solving the linear equation numerically. So um, so after this, after you have this 3D distribution, okay, now this is complete. Keep you see this window on left side, this navigation tree menu, and here you have your results. This is 2D, 3D, and you can see that this is D field, and you would have this 3D distribution of electric flux density around this sphere, and likewise this is E field around this sphere, and then we have this electrostatic energy density, because this is generally not uh, in form of contours, because this is a kind of a scalar. So you can see this in terms of bubbles here, or probably in terms of isosurfaces. If I'm not wrong, let me see the potential. Okay. Okay, we have this potential in terms of isosurfaces, or we can have this in terms of bubbles. Okay, and yes, in all these cases, yes, because E field and D has a direction, so we can have these in arrows. Okay, arrows or contours. ये इलेक्ट्रिक डेंसिटी में अगर आप देखेंगे तो वो बबल्स या बबल्स की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं. अगर आप यहाँ पे एरोज एरोज को तो आप इसमें खैर सेलेक्ट ही नहीं कर सकते, कंटूर्स में इसको शो करना चाहिए. आई डोंट नो ये क्यों नहीं शो करते, बट एनीवे. सो वन थिंग इज क्लियर, there's nothing, you can't really make anything of this 3D representation. All you can do is probably go here, do some smart scaling. This is smart scaling. Okay. So yeah, yes, this is smart scaling. और ये बबल्स की बजाय ये पोटेंशियल है, तो ये बबल्स है. ये इसकी भी आप इसको भी स्मार्ट स्केलिंग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब अगर आप देखें तो आपको कुछ यहाँ पे पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी आपको समवट कुछ बेहतर फॉर्म में आपको मिलेगी. आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं. यहाँ पे आप ये और थोड़ा सा इसको रोटेट करके देखेंगे तो आपको कुछ आइडिया होगा. ओके, कुछ सेंटर में सम कलर higher than higher than blue, so there are values, but really difficult to make out. So in order to see, okay, how we can make out what is this distribution, we can have a cutting plane here. Okay, and then we'll have the field on that plane. Okay, जो भी आपका कटिंग प्लेन है उसके ऊपर आप रख सकते हैं. अब इसमें एक्टिवेट क्रॉस सेक्शंस ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, सिलेक्ट क्रॉस सेक्शन, एक्टिवेट. अभी क्रॉस सेक्शन ए है, यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन सी कर सकते हैं, और यहाँ पे भी हम क्रॉस सेक्शन सी कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी. ठीक है, स्मार्ट स्केलिंग हमने पहले ही की थी, तो ये आपको थोड़ा सा शो कर रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी. तो जो जो जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, ऑफ कोर्स वहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी भी स्ट्रॉन्ग है. जो जो आप बाहर जा रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको पता चल रहा है कि
इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कम होती जा रही है। अच्छा, कम डेंसिटी हो रही है। अगर आप ओवरऑल किसी भी रेडियस पे एक पूरा स्फीयर बनाएंगे और उसमें देखना चाहेंगे कि टोटल जो है वो उसकी जो एनर्जी डेंसिटी है, सॉरी, जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है, तो वो आपको सेम होगी एक सरफेस के ऊपर। कोई भी आप इसके ऊपर कोई स्फीयर लेंगे, क्योंकि जो टोटल एनर्जी डेंसिटी जो चार्जेस की है, जो चार्जेस हैं उनकी तो टोटल एनर्जी, सॉरी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी उनकी। इसी तरह आप यहाँ पे नीचे पोटेंशियल पे चले जाएं। ठीक है, तो ये आपको पोटेंशियल, अब इसमें आपको फर्क वादे तौर पे नजर आना चाहिए। जब आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी पे क्लिक किया था तो विद इन द स्फीयर द इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी वाज जीरो बिकॉज डी एंड ई वाज जीरो, बट एज फार एज द पोटेंशियल इज कंसर्न, ठीक है, आप देखें विद इन द स्फीयर द पोटेंशियल इज नॉट जीरो। ओके, क्योंकि जब आप, अगर आप इन्फिनिटी से आ रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो थी, और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल जब आप सरफेस, मेटेलिक सरफेस पे पहुंचे हैं तो वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम थी। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। ठीक है, तो E जीरो होता है जब वोल्टेज कांस्टेंट होती है, तब भी E जीरो होता है। तो यहाँ पे चूंकि सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस हैं स्फीयर के ऊपर, तो इसलिए जाहिर है कोई ना कोई तो पोटेंशियल होगा ना। जैसे बैटरी है, उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव पोटेंशियल तो होता है। तो इसी तरह जो जो मेटल का जो मेटल की सरफेस है उसके ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव पोटेंशियल है। और जो जो आप स्फीयर के इनसाइड मूव करेंगे तो वो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। वहां पे आपको, क्योंकि जो ही आप सरफेस ऑफ द स्फीयर को छोड़ेंगे और विद इन मेटल स्फीयर आ जाएंगे, तो चूंकि वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो आपको वहां पे चार्ज मूव करने के लिए दूसरे एंड तक कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। दूसरे एंड पे भी उतना ही पोटेंशियल है। ठीक है, दूसरे एंड पे भी उतने ही चार्जेस हैं। तो इसलिए जो पूरा मेटल का स्फीयर की जो सरफेस है वो एक ही पोटेंशियल पे है। और इसकी लॉजिक ये है कि अगर आप जो ही मेटल की सरफेस से अंदर एंटर होंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब है कि वहाँ से जब आप चार्ज को मूव करेंगे दूसरे एंड तक, तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी। वोल्टेज वुड रिमेन कांस्टेंट, जो वहाँ पे थी वो वही यहाँ पे होगी। यानी सरफेस तक, बस अगर चार्ज आपने इन्फिनिटी से लिया और उसकी सरफेस तक पहुंचाया, वही है टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो आपने किया है। जो ही आप स्फीयर के अंदर जाएंगे तो वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज में कोई मजीद अदाफा नहीं होगा। ठीक है, उस एंड से दूसरे एंड तक आपको कोई मजीद वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज वही रहेगा जो सरफेस तक चार्ज लाने में आपने किया, इसलिए वो वोल्टेज और पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी है, वो चूंकि डी और ई पे डिपेंड करती है तो वो नहीं है। तो इसी तरह आप जब डी को देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो यहाँ पे भी आप देख लें, ये यहाँ पे आप एरोज को यूज़ कर सकते हैं, और मैंने स्मार्ट स्केलिंग यूज़ की है। अब यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल रेडियल डायरेक्शन में यू कैन सी, जैसे हमने थ्योरी में देखा कि रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होगी और रेडियल डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसकी भी आप स्मार्ट स्केलिंग कर लें। और अब आप फार्मूलाज भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं पहले डी को देखूं, ठीक है, तो दिस इज 7.9710 रेस्ट पर -6। ठीक है, और ई का फार्मूला आपके पास क्या है, सॉरी, डी का फार्मूला, ई का फार्मूला है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और डी इज इप्सिलॉन नॉट इंटू ई। तो इप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो आपके पास ये होगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई
आर स्क्वेयर। ओके, तो फिलहाल आप 10 की जो पावर है, जो एक्सपोनेंट्स है, उसको छोड़ दें। क्यू आपके पास है इज समथिंग लाइक 100 पिको फेरेडे। ओके, और 4 पाई जो है वो होगा 4 × 3 12 आप कर लें। तो और चूंकि रेडियस जो स्फेयर का है वो 1 मिलीमीटर है, तो मीटर में वो 1 × 10⁻³ होगा। सो दिस इज समथिंग 100 डिवाइडेड बाय 12 अराउंड। ओके, सो so if you see 100 divided by 12, so 12 into 8 is 96. Okay, so 8 into 10 raised to power something should be the value of D, or electric flux density. और अब आप 10 रेज टू पावर देख लें कि जो आपके पास चार्ज था वो 10 रेज टू पावर -12 था, और नीचे आपके पास जो रेडियस है वो 1 × 10⁻³ है, जिसको ऑफ कोर्स आपने स्क्वायर करना है। और जब आप उसको स्क्वायर करेंगे तो वो भी 10⁻⁻6 हो जाएगा, और वो ऊपर जाके +6 हो जाएगा। तो ऊपर आपके पास 10⁻12 +6 हो जाएगा। तो थ्योरेटिकली भी आपके डी की वैल्यू 8 × 10⁻6 होनी चाहिए, और प्रैक्टिकली भी मोर एंड लेस यही है। इसी तरह अगर आप ई फील्ड को देखें तो ई फील्ड सिंपली डिवाइड्स बाय इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब वो इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है कि वो 8 पॉइंट सॉरी ये समथिंग 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं कि 10⁻⁻12, और ऊपर आपके पास 10⁻⁻6 था, तो 10⁻+6 तो यहाँ से आ जाता है। लेकिन जो आपके पास ऊपर वैल्यू थी अप्रॉक्सीमेटली वट एवर वैल्यू इट वाज 8 और 7.97, वो फिर डिवाइड भी हो जाती है। ठीक है, तो 8.854 से वो डिवाइड हो जाती है। तो इसलिए 10 की पावर एक और मज़ीद कम करके, तो ये आपको 9 exponential 10⁻⁵ वोल्ट पर मीटर, ये भी अप्रॉक्सीमेटली सही वैल्यू है। अच्छा, अगर आप इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी, अब आपको थोड़ा सा बैठ के कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हाँ ये इसकी वैल्यू सही बता रहा है कि नहीं बता रहा। तो थोड़ा सा आप इसको यू कैन जस्ट स्लाइटली कैलकुलेट दिस, और यहाँ पे ये पोटेंशियल है। ठीक है, V का हमें ऑलरेडी पता है कि वो Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है। ठीक है, वो R स्क्वेयर नहीं है। तो आप उसको आप उसको दोबारा यानी उसी तरह से करके देख लें। 100 पिको फेरेडे डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके, यानी बेसिकली इसको आप R से मल्टीप्लाई कर लें, एंड R इज 1 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, सो सो थिंक ओवर दिस। 10⁻³ आप करेंगे तो ये 10⁻² हो जाएगा। सो दिस टेल्स यू समथिंग क्लोज टू 900। ओके, जबकि यहाँ पे आपने पोटेंशियल देखा है 8 to 7। ठीक है, तो समवट क्लोजर, कोई इसमें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में एक तो वो कि वो थ्योरेटिकल वैल्यूज़ हैं, और ये एक्चुअल न्यूमेरिकल सिमुलेशन वाली वैल्यूज़ हैं। सो देयर माइट बी स्लाइट डिफरेंस बिकॉज ऑफ दिस दैट एज वेल। सो दैट इज़ हाउ नो व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू कि आपने ये एस्टिमेट कैसे लगाना है कि डी ई electrostatic energy density or potential, is it approximately correct or not? That is the crux of learning. Okay, because you cannot depend on a software, you cannot depend on AI. It's my experience, these AI tools and these softwares, they sometimes make blunders. Okay,
So it is your own insight and judgment that plays a crucial role uh, in analyzing. So that was it, but still these were just approximate, calculations. So in order to know exactly what kind of distribution is around this sphere, all I can do is, first of all, okay, so that is a perspective. This is the potential, this is G, this is D, okay. I do smart scaling and I can just, for example, okay, right at the center we have a sphere. So in order to find out the exact distribution, I can uh, uh, what I can do is I can go to this simulation. Okay, sorry, this probably post processing and this result template. Okay, अच्छा यहाँ पे रिजल्ट टेम्पलेट में अगर आप देखें तो सॉरी, नोट दिस, इसको फिलहाल आप बंद करें, आप सिमुलेशन में जाएं, ठीक है, सॉरी, मॉडलिंग, ओके, ठीक है, हाँ। या आप अपने 2D रिजल्ट्स में जाएं, यहाँ पे देखें, आप अपने 2D रिजल्ट्स को देख रहे हैं और यहाँ पे आपने जाना है टूल्स पे। टूल्स पे यहाँ देखें, ये डिफरेंट फील्ड कैलकुलेटर्स, फील्ड एट अ कर्सर, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नो वन हैज, आई मीन, would have explored each and everything, but as you progress you explore different things. So I'll go here 1D field, 1D plot, okay. अब 1D plot में 1D plot is for plotting a graph along a line, okay. So because this is a symmetric problem, so I can choose any axis x, y, z and ask this software to give me a graph along that line. Okay, so here it is simple. I can ask, जैसे यहाँ पे भी मैं कार्टेशियन में इससे पूछ लेता हूँ कि मुझे एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड तुम बता दो डी का, ठीक है। और यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करना है, ठीक है। Sometimes you don't have to fiddle with the preset values, but at other occasions you need to understand, okay. So it's very important to see that calculation range is 1D along a curve or a line. You can do that along a point as well. This would be useful for many problems of Sadiku book where it has asked कि जी यहाँ पे भी एक चार्ज है, यहाँ पे एक लाइन चार्ज है, यहाँ पे एक सरफेस चार्ज है, तो इस पॉइंट के ऊपर आप मुझे बताएं कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की क्या वैल्यू है। तो वो सारे उस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए आप ये 0D यूज़ करेंगे। और अगर आपने लॉन्गर लाइन देखना है तो फिर ये, और इसमें वो देखें कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, आप इसमें से दूसरे भी सिलेंड्रिकल स्फेरिकल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये ग्लोबल -11 से +11 तक ये प्लॉट करेगा और x डायरेक्शन होगी, और ये जो y की वैल्यू है ये -11 होगी +11। इसका मतलब ये है कि y -11 और z -11 और z इज ऑन दिस साइड और y भी -11। तो ये समवेयर यहाँ पे कहीं जाके वो प्लॉट कर रहा है, लेकिन हमें तो सेंटर में से गुजरना है, तो इसलिए हम यहाँ पे y को भी 0 कर देते हैं और यहाँ पे z को भी 0 कर देते हैं, ठीक है। और फिर इसको हम ओके कर देते हैं, दैट्स ऑल। और ये हमारे पास डी आ गया है। इसमें अभी हमने डिफाइन किया कि आपने करना क्या है। आप इसको एवेल्युएट करें, ये ये एवेल्युएट हो गया है, ठीक है। और ये कहता है कि रिजल्ट नेविगेटर पे जाएं, दिस इज रिजल्ट नेविगेटर, और यहाँ पे करंट रन पे आप जाएंगे तो ये देखें उसने आपको प्लॉट दे दिया डी का,
ठीक है। ये इसने आपको डी का प्लॉट दे दिया है, और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जैसे हमने देखा था कि 8 × 10⁻⁻6 है। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन में दिस इज 7.97। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने की है कि वो ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें कि विद इन दी स्फीयर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो। ओके, वी हैव ओनली 5 more minutes टू एक्सप्लेन दिस। और यहाँ पे जो ही आप स्फीयर से बाहर जाते हैं तो ये प्लॉट शो कर रहा है कि दिस कर्व इज प्रोपोर्शनल टू 1/x², वेयर x इज द डिस्टेंस। ओके, तो 1/x थोड़ा सा इसका स्लोप और ऐसे कम हो जाता है, और अगर वो प्रोपोर्शनल टू x हो तो वो ऑफ कोर्स एक स्ट्रेट लाइन होती है। इसी तरह आप ई का भी प्लॉट कर सकते हैं, और पोटेंशियल का भी प्लॉट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इसमें मैं आपको सिर्फ इतना ही बताता हूँ, बाकी एक्सेल में आपने डाटा कैसे एक्सपोर्ट करना है, होपफुली यू कैन डू दैट। और इसी तरह ही अब आप यहाँ पे ई पे आ जाएं। ठीक है, और ई की इस 3D डिस्ट्रीब्यूशन है, टूल्स पे जाएं। अरे sorry, ओके, क्योंकि हमने प्रीवियस वाला जो है ना ये क्लोज नहीं किया, इसलिए वो नया नहीं कर रहा। तो यहाँ पे टूल्स पे जाएं, और यहाँ पे 1D प्लॉट पे। अब आप यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली ई फील्ड आ गया है, वो सारा बाकी सारा कुछ यही है, ये आपने ज़ीरो और ये भी ज़ीरो करना है। और अब ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की 1D कर्व या दे देगा, और आपने इसको एवेलुएट करना है। ठीक है, और ये यहाँ पे रिजल्ट नेविगेटर में इस पे जाना है। ये देखें आपने इसमें उसको प्लॉट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन विद इन दिस स्फीयर इज जीरो, और ये 1/r² है। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे चले जाएं पोटेंशियल के ऊपर। ठीक है, तो पोटेंशियल में भी आपने यहाँ पे टूल्स, सॉरी, अगेन इसको आपको थोड़ा क्लोज करना होगा। यहाँ पे आप जाएं टूल्स में 1D में। ठीक है, और उसके बाद उसने ऑटोमेटिकली ऊपर पोटेंशियल कर दिया, यहाँ पे आपने ज़ीरो और यहाँ पे आपने ज़ीरो करना है, और इसको आपने एवेलुएट करना है। ये आपने एवेलुएट कर लिया, और ये आपको ऑटोमेटिकली अब ये पोटेंशियल का प्लॉट दे दिया इसने। और देखें ये जो पोटेंशियल का प्लॉट है 827, क्योंकि आपने आपने अगर किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक आए हैं सरफेस के ऊपर, तो जो आपने काम किया है वो दैट इज द पोटेंशियल विच इज 827 वोल्ट। और उसके बाद जब आप उस चार्ज को मजीद थ्रू दिस स्फीयर दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं, तो अब आपको काम नहीं करना पड़ रहा, तो इसलिए वो काम उतने ही है। इस डिस्टेंस में आपको काम करना जो है ना वो ज़ीरो है, तो टोटल वर्क डन वुड रिमेन दिस टिल एट द अदर एंड। ठीक है, और फिर जब आप उससे लेके जाएंगे वे, तो वो पोटेंशियल फिर कम होता जा रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक जो वर्क डन है वो ये है। इसी तरह आप इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी पे चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे टूल्स पे जाएंगे, 1D प्लॉट पे जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली ये सारा कुछ वहाँ पे आ गया, ये ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा, और इसको ओके कर देंगे, और इसको आपने एवेलुएट कर लेना है। और ये एवेलुएट हो गया है, और इसको आप बेशक क्लोज कर दें और ये करंट रन पे चले जाएं, तो इसने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी दे दी है। ठीक है, नाउ दिस यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम दैट फार्मूला, which is density is half d dot E, and then you basically to calculate the sorry, this is the electrostatic energy density, total energy आपने कैलकुलेट करनी है, तो आप उसको आप इंटीग्रेट करते हैं over the volume. Okay, so yes, that's how it is। और डी की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 10⁻⁻6 है। ई की वैल्यू रफली आप कह लें 10⁻6 है। तो ये दोनों को जब आप मिलाएंगे तो यानी आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन देयर इज सम अदर फैक्टर, और वो जब आप यूज़ करेंगे सो इट शुड गिव यू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। ओके, एंड दिस ये देखिए और बहुत तेज़ी से कम हो रही है, क्योंकि वो ई 1/r² से कम हो रही है, और डी 1/r² से कम हो रही है। सो प्रोबेबली दैट्स वाई एनर्जी डेंसिटी जो है वो और भी तेज़ी से कम हो रही है।
Yes, so that's all basically. एंड टाइम भी अब ख़त्म हो गया है, तो होपफुली अब आप कर सकेंगे ये सिमुलेशन। ये मैं आपको बता दूं कि ये इंस्टॉल करना इतना मुश्किल नहीं है, CST। आप वो getintoPC.com से आप डाउनलोड करें और फिर उसमें एक प्रोसीजर